Hi friends, in this session we'll start with the conductance of electrolytic solution. टाइटल देखते ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर ये तो सारा का सारा चीज सर फिजिक्स में आ रहा है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी. यस, यू आर कंप्लीटली राइट स्टूडेंट. मोर और लेस ये सारी की सारी चीज आपने इन डिटेल डिस्कस की है फिजिक्स के अंदर. बट इन टुडेज सेशन इन चैप्टर नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के अंदर भी हमारे सिलेबस में ये पार्ट अवेलेबल है. So without wasting much time, first of all, what actually means by resistance? So the electrical resistance is the hindrance to flow of an electron. आप सभी को पता है resistance is nothing but the electrical resistance is the hindrance of flow of electron. It is units as ohm. Ohm में वो denote measure किया जाता है. The resistance of a conductor is directly proportional to its length of the conductor L and inversely proportional to this area of cross sectional of conductor. Yes, you are absolutely right. Almost we are approaching to this Ohm's law. That is R is proportional to L, inversely proportional to 1 upon A. So R is proportional to L by A. अब ये proportionality constant निकाल लोगे, proportionality constant निकल जाएगा, you get rho, और rho क्या है? Resistivity. Yes, you are completely right. R is equal to rho L by A, where rho is a constant called resistivity or the specific resistance. उसका यूनिट क्या है? ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर. नाउ आप सभी को पता है 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर. ये इंटर कन्वर्जन बहुत काम में आएगा केमिस्ट्री के अंदर. क्यों? क्योंकि यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा 10 to the power से. Next definition, resistivity. Resistivity is defined as the resistance offered by a conductor having unit length and unit area of cross section. जो हमने ऑलमोस्ट ऊपर पढ़ा. आप सभी को पता है रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. सो दैट इज R proportional to L by A. R is equal to rho L by A. This rho is nothing but the resistivity. तो अब रेजिस्टिविटी को हमने डिफाइन किया. It is defined as the resistance offered by a conductor having the unit length and the unit area of cross section. Now conductance. Conductance क्या है? Conductance is all about, it is the inverse of resistance that denoted by G is equal to 1 upon R. Unit क्या है? Ohm inverse. और Ohm inverse को क्या बताया जाता है? Mho. Yes, you are all right. Mho, or you can say that Siemens, that is S. So G is equal to 1 upon R, or you can say that A upon rho L, or you can say that K A by L. K क्या है? Kappa. Kappa क्या है? Conductivity. Fine. So where K, kappa is called conductivity or specific conductance. अब specific conductance की definition क्या है? It defined as the conductance of a conductor having unit length and unit area of cross section. Its unit is ohm raised to 1/2, meter raised to -1, mho meter raised to -1, Siemens meter raised to -1. Means basically क्या है? That is 1 upon R. तो R के जितने भी यूनिट है वो 1 upon कर लीजिए. That is ohm इनवर्स हो जाएगा मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर mho मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस मीटर इनवर्स हो जाएगा. वंस अगेन कन्वर्जन यूनिट सेंटीमीटर और मीटर का कन्वर्जन है, वो याद रख लीजिएगा. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी जो हमारे सिलेबस में है. फर्स्ट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटालिक. ना राइट नाउ हमें कोई मेटालिक नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक. बेसिकली वी आर यूजिंग सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आप सभी को पता है. सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट होगा, उसको मॉल्टन फॉर्म में ले लीजिए, तब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. और इस प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में नहीं है. आप सभी को ये सारी की सारी चीज पता है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विथ electrical conductance through a metal is called metallic or electronic conductance. and it is due to the movement of an electrons. It depends on the nature
and the structure of metal and the number of valence electron per atom and the temperature. For electronic conductance, when the temperature increases, conduction increases. आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस. नेक्स्ट, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by ion present in a solution is called electrolytic और आयनिक कंडक्टेंस. अब आयनिक कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन स्कूल के अंदर पूछे जाते हैं, प्लीज याद रख लीजिएगा. सो आयनिक कंडक्टेंस कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सेकेंड, द साइज ऑफ एन आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन. सॉल्वेशन का मतलब क्या होगा, कौन से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, वाटर है, पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. थर्ड, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी. वंस अगेन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब पोलर है या नॉन पोलर है. एंड नेक्स्ट, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मीन्स बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्शन कम हो जाएगा. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. Fifth, temperature. As temperature increases, electrolytic conduction is also increases. So these are the 5 parameter. 2 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं, पांचों के पांचों पैरामीटर याद रख लीजिएगा. A simple substance which allow the passage of electricity in a molten state or in a solution state are called electrolytes. On the passage of electricity, they undergo chemical decomposition. So this is all about your resistance, resistivity, conduction and conductivity. अब मैं एक नीचे पिक्चोरल डायग्राम दिखाऊंगा, शायद देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या मैं दिखा रहा हूँ. Yes, you are absolutely right. This is a circuit of Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge आप लोगों ने फिजिक्स के 11th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल के अंदर भी परफॉर्म किया था. आई डोंट थिंक मुझे ये इन डिटेल परफॉर्म करवाने की जरूरत है. सिंपल R1 by R2 is equal to R3 by R4. इन 4 में से एक अननोन होगा, बाकी 3 आपको पता है. मेक ए फॉर्म ऑफ इट, सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यू कैन गेट योर आंसर. सो दिस इज हाउ कैन यू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन. सो बाय मीन्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन. सो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो कभी कहीं पे भी पूछा नहीं गया हुआ है. जस्ट बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज इन डिटेल डिस्कशन किया हुआ है 11th फिजिक्स के अंदर, इवन स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सिखाया गया हुआ है. तो 12th बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कभी नहीं पूछेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. फाइन. सो ये बहुत ही मीन्स ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप खुद से भी लिख सकते हो डायग्राम ड्रॉ करके, R1 R2 क्या है वो दिखा के. तो फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं. We know that conductivity G is equal to kappa into A upon L. So the conductivity kappa is equal to G into L by A. The quantity L by A is called as cell constant. हाँ, ये चीज याद रखिएगा, that is called as G star. सेल कांस्टेंट क्या होता है, L by A. कई बार ऐसा होता है सेल कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं दिया होता, L and A की वैल्यू दी होती है. तो सबसे पहला स्टेप न्यूमेरिकल के अंदर आपको L by A से सेल कांस्टेंट मींस G स्टार ढूंढना पड़ेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर न्यूमेरिकल. So it depends on the distance between the electrodes and their area of cross section. Its unit is meter inverse. The conductivity is equal to conduction multiplied by cell constant. ये फॉर्मूला के ऊपर भी इंडेक्स में 1 या 2 न्यूमेरिकल है. कौन सा, conductivity is equal to conductance multiplied by cell constant. So this is a simple discussion about Wheatstone bridge. Wheatstone bridge कैसे काम करता है, किस हिसाब से है, देख लीजिए. First determine the resistance by this using Wheatstone bridge. It consists of a 2 resistance R3 and R4, a variable resistance R1 and the conductivity cell having the unknown resistance that is called R2. It is connected to this AC source and suitable detector. And simplify it. Direct current cannot be used. Fine, simple. R1 by R2 is equal to R3 by R4. R2 को इक्वेशन का फॉर्म बना लो, R1 into R4 divided by R3. Therefore the unknown resistance, by knowing the resistance
वी कैन फाइंड आउट द कंडक्शन एंड कंडक्टिविटी। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप सभी को पता है, फिर भी एक बार अच्छे से, डू नॉट गो इनटू दिस ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। नेक्स्ट 1 मार्कर क्वेश्चन, मोलार कंडक्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन kept between the 2 electrode with a unit area of cross section and at a distance of unit length. Once again definition अच्छे से word by word 2 बार याद रखिएगा। It is the conductivity of a 1 mole, clearly लिखा हुआ है molar conductivity. So it is the conductivity of 1 mole of an electrolyte solution kept between the 2 electrode with a unit area of cross section at a distance of unit length. 1 mole, unit area and unit length of distance. 3 चीज याद रखनी है। It is related to this conductivity of a solution by equation lambda m is equal to kappa by c, where c is equal to concentration. So lambda m is equal to 1000 kappa by m. Why? m is equal to molarity. Molarity का definition क्या है? Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. That's why it's a 1000. यूनिट अच्छे से याद रखिएगा, यूनिट नहीं लिखा तो आधा नहीं 1 मार्क कट कर लूंगा। सो यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो मोलार कंडक्टिविटी के 2 न्यूमेरिकल है और दोनों के दोनों फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला किस हिसाब से है? 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है। देखिए, फर्स्ट इज लैम्डा एम, मोलार कंडक्टिविटी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू -1, देन न्यूमरेटर बन जाएगा कापा डिवाइडेड बाय 1000 इन मोलारिटी। बट इफ लैम्डा इज m इज इक्वल टू सेंटीमीटर में होगा तो सीमेंस मीन्स कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ओनली एंड ओनली मीटर स्क्वायर का है। सो यहाँ पे लैम्डा m सीमेंस मीटर स्क्वायर है तो कापा डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलारिटी है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर क्या याद रखना पड़ेगा? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। इधर दोनों में से कोई भी एक याद रखिए तो भी चलेगा। न्यूमेरिकल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मीटर में तो थ्रू द एक्सरसाइज आप मीटर में ही रखोगे। अगर सेंटीमीटर में स्टार्ट कर रहे हो तो सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में। बट जो अगर आपको इंटर कन्वर्जन करना हो तो ये एक चीज याद रखिएगा, 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 to the power 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 to the power 4 मीन्स आपका जो आंसर है वो 10 to the power 4 में चेंज हो जाएगा, जो अगर आपने गड़बड़ी की मीटर एंड सेंटीमीटर की तो। और उल्टा भी याद रख सकते हो, सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोलार कंडक्टिविटी एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। ये सेशन बहुत ही इजी था, ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये सारा का सारा 11th फिजिक्स में पढ़ लिया था। दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देन उसके बाद हमने डिस्कशन किया की पॉइंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर जरूरी है, एंड लास्ट इज व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3। बाय अननोन रेजिस्टेंस आप ढूंढ सकते हो। एंड देन लास्ट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड फॉलोड बाय दिस 2 फॉर्मूला, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। On the basis of this formula, we have 3 to 4 numerical available. Numerical next session में अच्छे से चेक करेंगे। This is all about your today's session. Thank you.